Okay, good afternoon, media friends and viewers. On behalf of Mismi Welfare Society, thank Arunachal Press Club for giving us the opportunity to use this platform. So, before I start, let me introduce my team with you first. Myself, Sokhep Kri. I'm Vice Chairman Protocol, Mismi Welfare Society. And to my left is Sri Suraj Tayang. He is General Secretary, Cultural and Literary Society of Mismi Kalsam. And to my right is Sri Akepi Lingi, who is Vice President, Idu Mismi Cultural and Literary Society, IMCLS. So, today we are here to share and also place the viewpoint of Mismi Welfare Society on the development that has taken place aftermath of the mysterious death of late Tumi Gangkak, who was serving as Undersecretary at APPSC and Assistant Controller of Examination. Many of you might be wondering as to why the Mismi Welfare Society has all of a sudden emerged to make a press briefing. But for your kind information, I am to inform you that Inspector Bumchu Krong and Inspector Techinega were attached with CBI as an investigating officer in the infamous APPSC fiasco. But we have observed that Inspector Bumchu Krong, who besides his association with the police department as an employee, is also a member of Mismi community. We have also seen that his name has been dragged again and again and put to media trial and community trial from one of the advanced community of our state, which is, we feel, very unfortunate. And today also, MWS, Mismi Welfare Society, expressed solidarity with the family of the deceased and also acknowledged that the death of Tumi Gangkak is a great loss for the state, as the incident has brought the investigation of the APPSC fiasco to a sudden halt. So, as you all know, that Inspector Bumchu Krong happened to be the last person to call late Gangkak on 23rd February 2023. So, it was quite obvious that the element of suspicion towards the caller would always be there, considering the human nature and emotion. But at the same time, we should not also forget that Inspector Bumchu Krong had called Tumi Gangkak while performing his line of duty as an investigating officer. Now, we are also made to understand that the Galo Welfare Society, GW, has taken over the issue of late Tumi Gangkak matter. And it is also being observed that GWS is putting all possible pressure upon the government in getting their unjustified and illogical demands
fulfilled. Dear friends, here I would like to refer to the informal tripartite meeting of Arunachal Indigenous Tribes Forum, Galo Welfare Society and Mismi Welfare Society, called by Arunachal Indigenous Tribes Forum, that is AITF, on 27th of February 2023, wherein 3 members from Mismi Welfare Society and General Secretary GWS have attended. In that meeting, both the CBOs, that is Galo Welfare Society and Mismi Welfare Society, have agreed that they will maintain, restrain, and shall place demand for conducting free and fair and speedy investigation of the late Tumi Gangkak death case. And in that meeting, for your kind information, the General Secretary GWS have assured AITF and Mismi Welfare Society that no personal attack on Inspector Bumchu Krong would be made from GWS and other frontal organization from Galo community. Fine, it was good that the name of Bumchu Krong was not taken on 28 February 2023 when candlelit procession was conducted at Itanagar. But we have seen Bumchu Krong's name has been used in most heinous manner by GWS and its frontal organization in subsequent days, which we feel is very unfortunate. We condemn it, and it was in fact the breach of trust from the part of Galo Welfare Society, we consider. We have been saying today also that Mismi Welfare Society is not shielding Inspector Bumchu Krong. Yes, he is the member from Mismi community, but we always say that if he is found to be involved in the death of Tumi Gangkak, he should be punished as per law. But it is not fair that an innocent gets such kind of harassment, that too from a mature community like GWS. Here, I would also like to share some notable works done by Inspector Bumchu Krong in recent past. It was Inspector Bumchu Krong who, as an inquiry officer, has cracked APSSB case for job scam. And what has happened with the people, those who were involved in case for job scam, is all for you to see. Some has been convicted also, and inquiry is still going on. And another, it was due to the effort put in by the Inspector Bumchu Krong again, that the Chandani Hotel modus operandi of APPSC fiasco was unearthed. In fact, as a concerned citizen, we all should be proud of a person like Inspector Bumchu Krong
for doing this remarkable work as a police officer. And now that the police department have released preliminary inquiry report of late Tumi Gangkok death case on 12th of this month through media briefings, the MISMI welfare welcomes and appreciates the police department for bringing out preliminary inquiry report, though bit late, and also appeal police department to complete the inquiry as soon as possible without fear and favor. And I again say that MISMI Welfare Society have faith in the system, and we believe in the system, and we hope that free and fair and speedy investigation would be taken up by the police department. And with this, I pause here, and I request my co-member Suraj Taeng, the General Secretary, Kalsam, to carry forward, please. थैंक यू सर। जैसा कि यहाँ पे सभी मीडिया बंधु को पता है कि वो जो दुखद घटना हुआ था लेट तुमी गांगक साहब का जो अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद में जो ह्यू एंड क्राई हुआ है, उसके बाद ही उनके फैमिली मेंबर्स ने और गालो समाज के कुछ मेंबर्स ने बुमचुक रोंग को मतलब बतौर मर्डरर उन्होंने एक्यूज़ किया है। लेकिन उस समय जो बिरीव्ड फैमिली मेंबर्स है उनका सेंटिमेंट्स को समझते हुए, ऑनर करते हुए मिश्मी समाज ने और जो बुमचुक रोंग का फैमिली मेंबर्स ने दे मेंटेन एटमोस्ट रेस्ट्रेंट, उन्होंने धैर्य के साथ काम लिया। न मिश्मी समाज ने न बुमचुक रोंग के परिवार वालों ने किसी प्रकार का प्रतिक्रिया व्यक्त किया, न किसी तरह का सोशल मीडिया में या किसी भी फोरम में उन्होंने किसी भी तरह का ये रिएक्ट नहीं किया है। उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ बाकायदा। उसके बाद में एसआईटी गठन होने के बाद में रिसेंटली आप लोगों को पता है कि स्टेट पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, जिसमें जो भी अभी तक का जो फाइंडिंग्स है एसआईटी का, ये खुलासा किया कि जो लेट गंगक जी का जो मौत था इट वाज ए सुसाइडल नेचर, जो पीएम पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बताता है। दूसरा बात, जो पुलिस ऑफिसर्स थे, इंस्पेक्टर्स, जिन पर आरोप था कि ये लोग मर्डर में शामिल है, तो जो जांच के एसआईटी का जो जांच था उसमें उनके खिलाफ ऐसा कुछ भी एडवर्स नहीं पाया है, कुछ भी ऐसा सब्सटेंस नहीं एविडेंस नहीं मिला जिससे कि बोल सके कि ये लोग उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन अब क्या होता है कि चिंता का विषय यहां पे होता है, अब जब एसआईटी का जो फाइंडिंग्स उजागर होता है, खुलासा होता है, इसके बाद भी अभी जो गालो वेलफेयर सोसाइटी है और उनके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनका आरोप का बौछार पे बौछार कम नहीं हो रहा है। वो लोग अभी तक भी वो लोग मानता नहीं है, वो लोग मानने को राजी नहीं है कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट को नहीं मान रहा है। वो लोग एसआईटी का रिपोर्ट का अभी तक का फाइंडिंग्स को नहीं मानता है। तो इससे हम लोग काफी चिंतित है। हम लोग मिश्मी वेलफेयर सोसाइटी बीइंग ए मैच्योर सीबीओ, जब उनका गंगक जी का डेथ के बाद में जो ह्यू एंड क्राई हुआ, जो बुमचुक रोंग को इतना सारा उनको बदनाम किया गया, डिफेम किया गया, उनको मर्डर लेबल किया गया, लेकिन मिश्मी समाज ने पूरा रिस्ट्रेंट रखा, रिएक्ट नहीं किया। लेकिन जब एसआईटी का जांच और पीएम रिपोर्ट को भी अभी नकारता है कुछ लोग, दे डोंट वांट टू क्या बोलता है इसको, एग्री नहीं कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे मीडिया बंधु लोग हैं, हमारे देश में सर्टेन एक प्रोसेस होता है, लीगल प्रक्रिया होती है, लीगल सर्टेन एक एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स होता है, एसओपीस होती है सर्टेन काम्स का, उसके जरिए चलता है, हम लोगों को मानना पड़ता है। तो हमारे समझ में ये नहीं आ रहा बात की जो बाकायदा एसआईटी गठन हुआ है, एसआईटी का जो लीडर, एसआईटी को टीम लीड कर रही थी, वो आपको पता है ये आपका डीवाईएसपी है केंगो दिर्ची साहब, वो भी गालो समाज के हैं, और जो इसको सुपरवाइज कर रहा था एसपी साहब जिमी चेराम साहब आईपीएस, वो भी गालो ऑफिसर है। और जो पीएमई हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उनका जो पैनल ऑफ डॉक्टर्स में से 3 में से एक गालो डॉक्टर थे, सुनने में आया है। इसके अलावा जो डिजीज थे, उनका जो भतीजा है वो भी थे, विटनेस कर रहे थे वहां पे।
तो अभी हमारा समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो एक प्रॉपर तरीके से जो हुआ है, जो डिजीज का फैमिली मेंबर्स का ही ये था, डिमांड था कि एसआईटी का गठन हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमारा भी आदमी हो, सभी उनके कहने के मुताबिक होता गया है। पर अभी जब ये पीएमई रिपोर्ट जब एक्सपोज होता है और एसआईटी का जो फाइंडिंग्स को जब वहां पे पुलिस का स्पोर्ट्स पर्सन बोलता है तो उनको फिर मानने को ये लोग तैयार नहीं है। तो हमारा समझ में नहीं आता है कि ये लोग आखिर चाहता क्या है। तो हम लोग काफी चिंता पड़ गया इसमें, इसलिए हम लोग को मजबूरन मिसमी वेलफेयर सोसाइटी को यहाँ पे आना पड़ गया है, क्योंकि हमें लगता है कहीं ना कहीं कि ये कहीं बुमचुक्रों को विक्टिमाइज कर रहा है क्या। अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बुमचुक्रोंग जो है, जो पहला केस जो है आपका एपीपीएससी एई पेपर लीकेज का, जो पहला जो केस का भी वो आईओ थे। उसके बाद जो सेकेंड केस एपीपीएससी 2014 से लेकर 2022 तक का, उसका भी टीम में शामिल है वो। फिर मैं आपको ये बताना मैं जरूरी समझता हूं कि जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जो जब ये जांच चालू हुआ है, जब वो आईओ थे, वो 27 सितंबर 2022 से, तब से उनका पिताजी अक्टूबर का पहला हफ्ता से अस्पताल में एडमिट हो गया। लेकिन बुमचुक्रोंग इतना वो एक सिंसियर ऑफिसर, हार्ड वर्किंग ऑफिसर है, उन्होंने पिताजी को बीमारी को ख्याल नहीं, मतलब अपना ड्यूटी को प्राथमिकता देते हुए अपना ये जांच में लगाया है। लेकिन फिर अच्छा हो गया, फिर दोबारा अक्टूबर में फिर से ये एडमिट हुआ है, तब जाकर के उनका पिताजी का ये आरके मिशन में बाद में 11 फरवरी 2023 से लेकर के 21 फरवरी 2023 तक 10 दिन तक एडमिट था आरके मिशन में। फिर उसके बाद 22 फरवरी 2023 को बुमचुक्रोंग ने फिर से ड्यूटी ज्वाइन किया विद इंस्पेक्टर तेची नेगा, सीबीआई में अटैच हो गया ईटानगर में। अब अभी देखिए, अभी पिछला 6-7 महीना से इनका पिताजी बीमार है। उसके बाद में ये जो है बुमचुक्रोंग जो है, बीमार पिताजी का इलाज, उसको नर्स भी कर रहा है अपने पिताजी को, साथ में ड्यूटी, वो बैलेंस बना रहा है कि ड्यूटी भी करना है, मुझे ड्यूटी भी बहुत जरूरी है, एक निष्ठा के साथ विद सर्टेन लेवल ऑफ पैशन वो ड्यूटी कर रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद में फिर आपका ये 13 अप्रैल को पिताजी उनका चल भी बसा है। तो ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि टू गेन सिंपैथी, माने सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ये बात नहीं बता रहा हूं, मैं केवल इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि देखिए, जो ऑफिसर इतने सिंसियरली काम करता है, पिताजी बीमार था, उनको भी देखता है, तो ऑलरेडी वो इतना स्ट्रेसफुल लाइफ था उनका, तो अभी तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, उन्होंने कितना मतलब अच्छा काम किया है। मतलब ये एक IOSIC में 2019 से वो वहां पे तैनात थे। तो आप सोचिए, उन पे जो मर्डर का इल्जाम लगा है, तो आप देखिए, जो आदमी इतना होनहार सिंसियर ऑफिसर और जो पिताजी का बीमारी में इतना उसमें वो ग्रस्त था, उनका मन में एक मर्डर प्लॉट करने का ख्याल आएगा क्या। और एक और बात है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनका जो प्राइम विटनेस को उसका हत्या करेगा क्या, इसमें तो कोई लॉजिक होता नहीं है। फिर ये बात भी मुझे कहना यहां पे जरूरी लगता है कि जब उनका जो जांच चल रहा था, तो उन्होंने बहुत सारा हाई लेवल हाई प्रोफाइल केस को उन्होंने हैंडल किया है, जैसे कि ट्रांस अरुणाचल हाईवे, APSSB, और अभी जो फिलहाल जो इनफेमस APPSC पेपर लीकेज स्कैम जो है। तो इस दौरान उन्होंने बहुत सारा लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से बड़ा बड़ा ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो अभी वी कांट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि उनके जिनको उन्होंने पकड़ा है, उनका जब वो जांच अधिकारी थे, तो उनके खिलाफ पर्सनल ग्रज भी they might be harboring personal grudge against the officer, and we are apprehensive कि there is possibility कि ऐसा लोगों मौका में होगा कि उनको हार्म करना है, मौका मिलेगा तो एक पर्सनल ग्रज तो उनके खिलाफ है ही। तो अभी क्या है कि हम वी आर वेरी मच वरीड अबाउट द वेल बीइंग एंड सिक्योरिटी ऑफ बुमचुक्रोंग। तो अभी क्या हमारा एक ये है, आप लोगों को पता सुना होगा कि एक जोसेफ गोबेल्स करके है, एक नाजी पॉलिटिशियन थे, तो वो क्लोज थे एडोल्फ हिटलर के। उन्होंने कहा था, इफ यू टेल ए लाई बिग एनफ एंड कीप रिपीटिंग इट, पीपल विल इवेंचुअली कम टू बिलीव इट। तो अभी हम लोग को डर ऐसा लगने लग रहा है, देखिए अभी एसआईटी का जांच अभी ऑलमोस्ट 70-80% से अधिक ये हो गया है, पीएमई रिपोर्ट भी आ गया है, अभी ये लोग मानने को तैयार नहीं है उसको, अभी भी ये लोग फिर इल्जाम पे इल्जाम, आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है। तो अभी हम सोचते हैं इसके पीछे क्या है, मैंने इनका क्या एजेंडा है, कि इनका क्या अल्टीरियर मोटिव है। तो हम ये मानते हैं कि हम जो गालो वेलफेयर सोसाइटी
जो अभी बुमचू क्रोंग को जो आरोपी ठहरा है अभी तक भी, इसका हम जोरदार तरीके से हम इसको हम विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। और हम ये उम्मीद, जैसे कि हम सभी को पता है कि गालो समाज हमारा अरुणाचल का वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव एडवांस इंटेलेक्चुअल समाज का गिनती में आता है। तो हमने कभी ये उम्मीद नहीं किया था कि इतना एडवांस समाज के लोग इस तरह का हरकत करेंगे, इस तरह का अप्रोच रखेंगे। तो हम गालो समाज से गुजारिश करते हैं कि henceforth they are requested not to drag the name of Bumchuk Krong in this case. Let's wait for the investigation. अभी पूरा नहीं हुआ है तो वो होने दीजिए, उसके बाद उसका फाइनल आउटकम जो होगा तो उसमें अगर वो दोषी होता है तो एज पर लॉ ही विल बी पनिश्ड। लेकिन जब तक अभी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुआ है, इट इज अनफेयर टू ब्रांड हिम एज ए मर्डर और मैंने ब्लाइंडली एक्यूज हिम ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन द मर्डर ऑफ लेट तुमी गंगकक साहब। तो इसके साथ मैं हमारा लीजिए सर, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। नमस्कार सभी को। ज़्यादातर पॉइंट्स जो है हमारे सीनियर्स दो कलीग ने कवर कर दिया है, बट इवन देन हम लोग को आज का दिन में इसलिए आना पड़ रहा है कि कंटिन्यूसली हम लोग कुछ महीना से देख रहा है ये जो मीडिया ट्रायल्स हो रहा है। एंड देन टिल नाउ व्हेन यू सी जो भी एक्टिविटीज़ हुआ, जो भी प्रोसेस हुआ, इट वाज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द GWS एंड द फैमिली कंसर्न, जिसका मतलब घर में डेथ हुआ, उन लोग का फैमिली का कंसर्न रहते हुए एवरी प्रोसेस वाज टेकन अप। तो आज का दिन में पीपल डोंट वांट टू बिलीव द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लेकिन उन लोग सिर्फ मीडिया में पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का नकार रहा है, लेकिन वी डोंट सी एनी एक्शन कि उस पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में अपना रिश्तेदार भी था। टेक्निकली देखने से तो अपना रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, वेरएस व्हेन बुमचू क्रोंग का रिश्तेदार नहीं है तो तुमी गंगकक साहब का रिश्तेदार भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन कंसिडरिंग द सेंसिटिविटी ऑफ दैट वन, ही नेफ्यू वाज आल्सो अलाउड टू बी ये चीज़। तो आज का दिन में अगर उन लोग फैमिली मेम्बर्स या जो भी है उन लोग मेडिकल रिपोर्ट को नहीं मान रहा है तो दे शुड गिव इन राइटिंग वाई दिस मेडिकल रिपोर्ट इज नॉट बीन कंसिडर्ड। दूसरा बात है, एज पर द पुलिस ब्रीफिंग 70 डेज का बाद जब एक पर्सन 65 सेकेंड्स के लिए 65 सेकेंड्स का कन्वर्सेशन होता है, उस 65 सेकेंड्स का कन्वर्सेशंस को लेके आपने पूरा स्टोरी या पूरा जो भी आपका नैरेटिव है उसको बिल्डअप कर लिया एंड यू एक्यूज द गाय एज अ मर्डरर। दिस इज नॉट डन एज एन, क्योंकि सब कुछ जस्टिस चाहिए बोल रहा है, तो जस्टिस चाहिए मीन्स जस्टिस फॉर बोथ। जो गुजर गया उसको भी जस्टिस चाहिए और जो जिसने इतना अपना खून पसीना बहा के अपना ड्यूटी निभाया उसको भी जस्टिस चाहिए। लेकिन दैट डजंट मीन कि आप जस्ट 65 सेकेंड्स का कन्वर्सेशंस को आप उसको मर्डर में लिंक कर रहा। और दूसरा क्वेश्चन है कि स्टेट यहाँ से पकड़ लो, लाइन से आपका CCTV फुटेजेस है, तो समवेयर आप टेक्निकल एविडेंस को कुछ जगह में मानेगा नहीं मानेगा, बेस आप आपका मर्जी से टेक्निकल इंफॉर्मेशंस को मानेगा नहीं मानेगा बोलने से नहीं होता है। तो दूसरा बात है कि अभी पकड़ लो, फैमिली मेंबर हैज़ ओवरहर्ड व्हाट द लेट तुमी गंगकक सेड, उसी तरह बुमचू क्रोंग का साथ में भी उसका कोलीग साथ में बैठा था, उन लोग भी कन्वर्सेशन हुआ है। तो देयर आर मेनी इंस्टेंसेस वेयर पीपल आर मतलब एज अ डिपार्टमेंट या एज अ कम्युनिटी या फ्रॉम बुमचू साइड का तरफ से कुछ मतलब हम क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा, मतलब नहीं है कि वो ही इज पार्ट ऑफ दैट। वी हैव बीन सिविल, वी हैव बीन जस्ट देख रहा है कि सिविल मेंटेन हो और मतलब थिंग्स शुड गेट डाउन। बट अभी ऐसा हो गया कि इमेजिन करो अभी जब हम ऐसे ही मतलब ओवर डिफरेंट नंबर ऑफ मतलब जो अभी तक जो
पेपर सेलिंग केसेस में और आपका मतलब कैश फॉर मनी ये सब में जब देखता है तो ऑलमोस्ट 46 नंबर ऑफ पीपल्स हैव बीन क्या बोलता है टेकन इनटू कस्टडी। आउट ऑफ उसमें पकड़ लो 17 जैसा जो है गालो समाज से है, तो उसमें से भी अराउंड से 10 या 7 तो जो है वो उस क्लाइंट से बिलोंग करता है जो लोग सबसे जोरदार कर रहा है। दैट मीन्स व्हाट, हम लोग का ये भी अभी अप्रहेंशन हो रहा है कि इज इट बिकमिंग मोटिव उल्टा हो रहा है क्या। एक्चुअली जिसको ब्लेम कर रहा मर्डरर, लेकिन जो ब्लेम करने वाले लोग का मोटिव्स अलग हो गया कि अपना जो ऑलरेडी केस में फंसा है उसको बचाने का ये मतलब ये है क्या। तो दैट इज़ व्हाट हम लोग को भी एक क्वेश्चन है कि ऐसा कैसा हो गया कि आप मोटिव ठहरा रहा है, यू आर नॉट आइडेंटिफाइंग एनी मेंशेरिया ऑन द मर्डर केस। अब आप कुछ ना एक 65 सेकेंड्स का आफ्टर 70 डेज का गैप में 65 सेकेंड्स का फ़ोन कॉल का बेसिस में आप एक मर्डर ठहरा रहा है। बट सिंस किसी का एक लाइफ जाने का बाद होने का कारण एवरीबडी हैज़ बिकम इमोशनल एंड एवरीबडी हैज़ बीन सपोर्टिंग द डिसीज का वर्जन। बट यहाँ में एक सिंसियर ऑफिसर जो जॉब कर रहा है, अपना ड्यूटी निभा रहा है, उसका क्या। एंड देन व्हेन यू सी इफ सिंस GW हैज़ टेकन इट कम्युनल, बिकॉज ये तो होना चाहिए था पुलिस एंड बोमचुकरों का बीच में केस होना चाहिए था, लेकिन ये GWS एंड बोमचुकरों केस कर दिया। तो बोमचुकरों केस कर दिया तो हम लोग को भी आना पड़ रहा है। वेयर एज वी वर एक्सपेक्टिंग कि पुलिस एंड बोमचुकरों होना चाहिए था एक्चुअल बोलने से, अगर एक्यूज करता है तो। लेकिन ऐसा नहीं हो कि ये कहानी कुछ और चला गया। एंड देन अभी हम लोग जब टीवी रिपोर्ट आपका ऑनलाइन पोर्टल्स का जब वेरियस न्यूज़ देखता है तो पीपल आर स्टार्टेड ट्रैकिंग बोमचुकरों। दैट इज़ नॉट गुड एक्चुअली। हम लोग का जो ट्राइबल समाज में ऐसा करना मतलब आप मर्डर करने का आप भी प्लान कर रहा है। कल को ऐसा ना हो जाए कि मतलब कुछ हादसा हो जाए एंड देन थिंग्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी। तो ये तो एक when you want to believe, you should start believing in scientific approach जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस आर परसुइंग। लेकिन नहीं, आप लोग उन लोग का साइड ऑफ वर्जन्स को आप नहीं मानना चाहते एंड यू वांट टू बिलीव ओनली दैट वो 65 सेकेंड्स का कॉल का बेसिस में यू मेड द जजमेंट एंड ऑल। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल द सेन पीपल ऑफ द स्टेट, देखिए एक डेथ हो गया, नोबडी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द अदर कॉजेस ऑफ डेथ, दे आर ओनली ब्लेमिंग दैट आज को। लेकिन उसका मोटिव कोई नहीं बता रहा है। बिना मोटिव का कोई मर्डर करता है क्या? ऐसे तो नहीं होता है। तो समवन हैज टू टेल इफ द डिसीज पीपल लोग का ये कि तो देन दे शुड गिव मोटिव व्हाई ही इज मर्डर। तो दिस मोटिव हैज टू बी आइडेंटिफाइड, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा देखना है। एंड देन आई अपील young people to look logically and understand that whatever you are trying to identify and trying to form an opinion is not always correct. One has to look into various facts and then make a judgment. Thank you.